سوئی میں کالعدم تنظیم کے کمانڈر سمیت 100 سے زائد افراد نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلح افراد نے پاکستان کا پرچم تھام کر ریاست سے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ کمانڈر وڈیرا نور علی چاکرانی نے اسلحہ میر آفتاب احمد بگٹی کے حوالے کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ قومی ادارے میں شمولیت قابل تحسین قدم ہے۔ ریاست نے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے۔ ریاست مخالف عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں۔ فوج پر تنقید ہم نے بھی کی لیکن سرخ لکیر کبھی عبور نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی پر رد عمل فطری قدرتی تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف جنگ اپنا نہیں سکتی، شہیدوں کے جنازے نہیں پڑھتی۔ بھارتی میڈیا کو انٹرویو دینے سے حالات مزید خراب ہوئے۔ سوشل میڈیا پر ہونے والی سرگرمیاں پی ٹی آئی کی مرضی سے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اپنی ہی پارٹی کے اندرونی بیانات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بانی پی ٹی آئی کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ کہا ذہنی مریض کے ایک ٹویٹ کو افغان اور بھارتی میڈیا نے منٹوں میں وائرل کیا۔ بھارتی میڈیا پاکستانی فوج کے خلاف پی ٹی آئی کی زبان بنا ہوا ہے۔ خوارج کا سہولت کار افغان میڈیا بھی ان کے بیانات کو اچھالتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، کہا یہ تو کہتا تھا کہ خارجیوں کا پشاور میں دفتر کھول دیں، لوگوں کو آپریشن کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اکساتا ہے۔ یہی جماعت، یہی لوگ پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں، کہاں سے ٹویٹ ہوتی ہے اور کون اسے اٹھاتا ہے، یہ سب اس ویڈیو میں دیکھیں۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے امکانات ختم، رانا ثناء اللہ کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے معاملہ مزید خرابی کی طرف لے کے گیا ہے۔ کہا وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش بدستور موجود ہے، جمہوریت ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے ایوان میں مذاکرات کی پیشکش واپس نہیں لی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقات کی اجازت ملے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں اور سیاسی لوگوں کا ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہنا افسوسناک ہے۔ پی ٹی آئی کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہیں تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری ہے۔ اعتماد کے فقدان کو ختم کرنا ہوگا۔ ملک مزید تناؤ اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جمہوری قوتیں کردار ادا کریں۔ نشان حیدر میجر شبیر شریف شہید کا آج 54واں یوم شہادت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کا میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق میجر شبیر شریف نے 1971 میں سلیمان کی ہیڈ ورکس پر دشمن کو کاری ضربیں لگائیں۔ میجر نارائن سنگھ کو مقابلے میں ہلاک کیا، متعدد بھارتی حملے میں ناکام بنائے۔ قربانیاں ملک کی خود مختاری اور سلامتی کا مضبوط ستون ہیں۔ دشمن کے خلاف بہادری سے مقابلہ کرنے پر میجر شبیر شریف شہید کو 1965 کی جنگ میں ستارے جرأت اور 71 کی جنگ میں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میجر شبیر شریف شہید کو 54ویں یوم شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ میجر شبیر شریف شہید کا کیریئر بہادری، شجاعت اور دلیری سے عبارت ہے۔ 1965 کی جنگ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ ہونے کے باوجود دلیری سے لڑے اور ستارے جرأت جیتا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ 1971 کی جنگ میں دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ میجر شبیر شریف نے دشمن کی صفوں پر خرچے اڑا دیے اور خون کا نذرانہ پیش کیا۔ میجر شبیر شریف جیسے بہادروں کی وجہ سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ گٹر میں گرنے سے بچے کی ہلاکت، کراچی والوں کا غصہ کم نہ ہو سکا۔ گلشن اقبال ٹاؤن چیئرمین کے خلاف بینرز آویزہ کر دیے۔ کھلے مین ہولز پر ٹاؤن چیئرمین کے خلاف تلاش گمشدگی کا بینرز لگائے۔ بینرز میں عوام کا پیسہ عوام پر لگاؤ کے نعرے درج۔ بچے کی ہلاکت کو ٹاؤن چیئرمین کی غفلت قرار دیا۔ اہل علاقہ کی جانب سے مختلف مقامات پر بینرز آویزہ کیے گئے ہیں۔ کراچی میں گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کا مسئلہ انتظامیہ کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، انسداد منشیات اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت، غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق، انسداد منشیات میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل جاری، ایئرپورٹس پر جدید اسکیننگ مشینیں نصب، افغانستان سے منشیات کے پاکستان اور دیگر ممالک میں پہنچنے کا مسئلہ اجاگر کیا گیا۔ نیشنل نارکوٹکس کوآرڈینیشن سینٹر وزیر اعظم کی ہدایت پر جلد قائم ہوگا۔ قائم مقام امریکی سفیر نے اے این ایف کی کارکردگی کو سراہا، تعلقات کو خصوصی اہمیت دینے کا عندیہ دیا۔
पंजाब हुकूमत ने वंडिश पाबंदी और लाउड स्पीकर के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर शादियों तकरीबात में वंडिश पाबंदी लाजमी होगी। बुलंद आवाज म्यूजिक और कवाली नाइट्स में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। फार्म हाउसेज ओपन एरियाज में भी वंडिश और लाउड स्पीकर पाबंदी पर अमल दरामद लाजमी होगा। शादी हॉल्स के मुकर्रर औकात की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। सरकारी अफसरान को खिलाफ वर्जी करने वाली तकरीबात में शिरकत की इजाजत नहीं है। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी की धुआं छोड़ने वाली 2 बसें बंद। महकमा माहौलियात की कार्रवाई लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात पर की गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि दोनों बसें धुआं छोड़ रही थीं, फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं था। महकमा माहौलियात के मुताबिक माहौलियात एक्ट के तहत बसों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों को किसी सूरत नहीं चलने दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से हेलमेट फरोशों की चांदी हो गई। दुकानदारों ने मुनाफा कमाने की तमाम हदें पार कर दी। कुछ हफ्ते पहले तक 500 से 700 रुपए में मिलने वाला हेलमेट 2000 से होता हुआ 4500 तक पहुंच गया। पंजाब में हेलमेट की पाबंदी सख्त होने पर मोटरसाइकिल सवारों की मुश्किलात में इजाफा। एक तरफ 2000 का चालान है तो दूसरी जानिब हेलमेट के मुंह मांगे दाम। बाजार में 1500 वाला हेलमेट 8-8 हजार में फरोख्त हो रहा है। मोटरसाइकिल सवारों का इल्जाम, शहरियों की शिकायत पर ब्लैक में हेलमेट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिला इंतजामिया का दावा। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.64% की कमी रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 4% पर आ गई। एक हफ्ते में 13 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 15 अशिया सस्ती, 23 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वफाकी इदारे शुमारियात की तरफ से महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी। लहसुन 1.86%, कुकिंग ऑयल 1.54%, अंडे 0.81 और घी 0.40% महंगा हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी की फिनलैंड के 108वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान फिनलैंड के साथ दो तरफा ताल्लुकात को अहमियत देता है। फिनलैंड तालीम, जिद्दत, तहकीक में नुमाया मुकाम रखता है। फिनलैंड का मुसलसल 8 बरस हैप्पीनेस इंडेक्स में पहली पोजीशन काबिल तहसीन है। तिजारत, तालीम, ग्रीन ट्रांजिशन में ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। डिजिटलाइजेशन, माइनिंग और टेलीकॉम में मुश्तरका काम की बड़ी गुंजाइश है। शिमाल मगरबी हवाओं के बायस लाहौर में दरामदशुदा आलूदगी में इजाफा। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को बर वक्त आगाही और एंटी स्मोक प्लान सख्त करने का फैसला किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम इदारे 24 घंटे फील्ड में मुतहरिक। फसलों की बाक़ियात जलाने की रोकथाम के लिए ड्रोन सर्वेलेंस और ग्राउंड टीमें तेज़ कार्रवाई कर रही हैं। रियल टाइम डेटा, वार्निंग सिस्टम और फौरी रिस्पॉन्स यूनिट्स मजीद मजबूत। गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज, मास्क का इस्तेमाल, पानी ज़्यादा पीना, सांस की तकलीफ पर फौरी अस्पताल रुजू करें। कराची में मौसम खुश्क, खुनक और धुंध आलू। दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दिन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री तक जाने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी 37%। शुमाल मशरक़ी हवाएं 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 8वें नंबर पर। फ़िज़ाई आलूदगी 170 रिकॉर्ड। हवा में ज़राअत की मुक़दार 71 पार्टिकुलेट मीटर्स और हवा गैर सेहत बख्श है। मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के नए औक़ात मुकर्रर। मर्द ज़ायरीन के लिए ज़ियारत का वक्त शब 2 बजे से नमाज फ़जर और दिन 11 बजे से इशा तक। ख़वातीन ज़ायरीन के लिए ज़ियारत फ़जर के बाद से दिन 11 बजे और इशा के बाद रात 2 बजे तक। रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल की अदायगी के लिए भी नए औक़ात कार का ऐलान। जुमे के बाद मर्द ज़ायरीन नमाज इशा तक ज़ियारत कर सकेंगे। ख़वातीन जुमे के रोज़ फ़जर के बाद से सुबह 9 बजे तक ज़ियारत की इजाज़त होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप को फीफा अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में होने वाले वर्ल्ड कप के ड्रॉज की तकरीब में दिया गया। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने वाशिंगटन में अवार्ड पेश किया। फीफा के मुताबिक अवार्ड अमन के लिए गैर मामूली कोशिश करने वालों को दिया जाता है। सदर ट्रंप ने कहा कि ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े एजाज़ात में से एक है। कांगो भारत पाकिस्तान में जंग को शुरू होने से पहले रोकने में किरदार अदा किया।
बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल मुकम्मल। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 का सानहा। हमला इंतहा पसंद गिरोहों ने कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़यात में 2000 से ज़ायद मुसलमान जान बहार, हज़ारों ज़ख्मी हुए। तहकीकाती रिपोर्ट 2009 में बीजेपी रहनुमाओं समेत 68 अफराद को जिम्मेदार करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक बाबरी मस्जिद की बेहुरमती बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी थी। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की कोशिशों की सख्त मुखालफत की। इसराइली पॉलिसी की शदीद मज़म्मत, ग़ज़ा के शहरियों को मिस्र मुंतकिल करने की कोशिश मुस्तरद, रफ़ा क्रॉसिंग दोनों तरफ से खुली रखने और फ़लस्तीनियों की आज़ादाना नक़्ल व हरकत पर जोर। मुश्तरका बयान में ग़ज़ा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी और मुकम्मल जंगबंदी बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। ग़ज़ा की तामीर नौ और बहाली के फौरी आगाज़ पर इत्तेफाक, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की जिम्मेदारियाँ संभालने की हिमायत, 2 रियासती हल के तहत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और मशरक़ी यरूशलेम को दारुल हुकूमत तस्लीम करने की तौसीक़। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची में सी व्यू पर क्लाइमेट वॉक में ख़वातीन, मर्द, बच्चों और बड़ों ने भरपूर शिरकत की। वॉक क्लॉक टावर से शुरू होकर निशानी हैदर पार्क पर इख्तिताम पजीर हुई। सूबाई सदर सिंध डॉक्टर महबूब नौनारी का कहना है क्लाइमेट वॉक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इज्तिमाई शऊर की अलामत है। मेहमान खुसूसी नूर अफशा बलोच ने कहा कि अवाम और समाजी रहनुमाओं की शिरकत माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की संजीदगी ज़ाहिर करती है। शुरका ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्लाइमेट चेंज कोई सियासी मौजू नहीं बल्कि हमारे शहर और बच्चों के मुस्तक़बिल का मसला है। कराची ब्लूज ने पाकिस्तान का प्रीमियर फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट कायद आज़म ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर लिया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में कराची ब्लूज के हाथों दिफाई चैंपियन सियालकोट को 218 से शिकस्त। कराची ने सियालकोट को 533 रन का हदफ दिया। जवाब में सियालकोट की पूरी टीम 314 रन बनाकर आउट। सियालकोट ने खेल के आखिरी रोज 12 रन बगैर किसी नुकसान के इनिंग्स का आगाज किया। कराची ब्लूज ने 10वीं मरतबा ये टूर्नामेंट जीता। कराची ने मजमूई तौर पर 22वीं बार ये टाइटल अपने नाम किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के हाथों खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफीज तक़सीम। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तानी बैटर फ़खर जमान पर जुर्माना आयद कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ हालिया सैमुल की सीरीज के फाइनल के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी फ़खर जमान पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया गया। फ़खर जमान ने आर्टिकल 2.8 की खिलाफ वर्जी की, जो इंटरनेशनल मैच के दौरान एम्पायर के फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल या एहतजाज जाहिर करने से मुतालिक है। आईसीसी का बयान। जो रूट ने असद शफीक का टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर जो रूट की पहली सेंचुरी, 138 रन की शानदार इनिंग्स। डे नाइट टेस्ट में सबसे बड़ा इंफरादी स्कोर जो रूट सरफहरिस्त। असद शफीक का 2016 का 137 रन का रिकॉर्ड टूट गया। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 334 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन के अख्ताम तक 6 विकेटों पर 378 रन बना लिए। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉज का ऐलान। 48 टीमें 12 ग्रुप्स में तकसीम। इवेंट आइंदा साल अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में मुनाकिद होगा। ग्रुप ए में मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया और प्ले ऑफ द टीम होंगी। ब्राज़ील, मराकश, स्कॉटलैंड और हैटी ग्रुप सी में शामिल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ग्रुप जे में, पुर्तगाल ग्रुप के में शामिल। ड्रॉज तकरीब अमेरिका में हुई और अहम शख्सियात की शिरकत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तकरीब में शिरकत की।